آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی حساس موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جرات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع مدارس اسلامیہ کی تابندہ تاریخ اور مدارس و مکاتب کی اہمیت و کردار کی ایک جھلک ہے۔ حضرات، مدارس اسلامیہ کی تاریخ صفحہ نبوی سے وابستہ ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک، بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ قیامت تک قائم ہونے والے تمام مدارس اسلامیہ اسی سلسلۃ الذہب کی اہم کڑی ہے، تو غلط نہ ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں سے اسلام کی آبیاری کی جاتی ہے۔ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں جہاں سے چمن اسلام کی سینچائی کا کام ہوتا ہے۔ یہ ایسی دانشگاہ ہے جن سے علم و عمل کے پیکر تیار ہوتے ہیں۔ انہی مراکز سے گوشہ شینی کرنے والے افراد مذہب اسلام پر لگائے جانے والے ہر قدم قدم دانشگاہ جواب دیتے ہیں۔ بقول شاعر، یہ جھوپڑے نہیں ایوان ہیں صداقت کے، یہاں سے قیصر و کسریٰ ہلائے جاتے ہیں۔ محترم حضرات، اسلامی مدارس اسلامیہ کے افراد نے ہر دور میں عالم کے امن و امان اور سکون کے لیے ایسی عظیم قربانیاں پیش کی ہے کہ اگر میں پورے عالم کی تاریخ کی جھلکیاں دکھاؤں تو میرے لیے اس مختصر وقت میں ناممکن ہوگا۔ اس لیے میں صرف ملک ہندوستان کے مدارس اسلامیہ کی کردار کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ ان مدارس اور مکاتب کی تاریخ و کردار کیا ہے۔ حضرات، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کی طرف سے لائے گئے سیاہی کے بادلے کو پاش کرنے کے لیے اپنے ہونہار ثبوتوں کو پیش کیا تھا۔ انہی مدارس کے ثبوتوں نے آزادی وطن کے لیے اپنے جسموں کو چھلنی کرایا تھا۔ انہی مدارس کے باکمال فرزندوں نے قید و فن کی صحبت برداشت کی تھی۔ انہی مراکز کے میلے کو جیاروں نے فاصل کے پندے کو چوما تھا۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہ کہتا ہوں کہ ان مدارس کے ثبوتوں نے آزادی وطن کے لیے جتنا اپنا خون جگر بہایا ہے، دوسرے ادارے اپنے ثبوتوں کے اتنے پسینے بھی پیش کرنے سے عاجز ہوں گے۔ آؤ نا مسلمانوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آزادی کا سور پھونکنے والے محدث جلیل شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہیں مدارس و مکاتب کے تربیت یافتہ تھے۔ جگر خان کے آگے بڑھو، بالا کوٹ کے پہاڑی کا نظارہ کرو تو سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی قرآنی کی شکل میں مجاہدین اپنے خون جگر کو دکھا کر وفاداری کا سبق پڑھائیں گے اور بتائیں گے کہ ان مدارس کی تربیت نے ہمیں وطن سے وفاداری کا کیسا درس دیا تھا۔ مزید آگے بڑھو، سن 1857 کے مارکہ شاملی پر ایک کا ایرانہ نگاہ ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس مارکے کے تمام مجاہدین انہی مدارس و مکاتب سے فیض حاصل کیے ہوئے تھے۔ چلو اور آگے چلو تو شیخ الہند اور شیخ الاسلام کی بامشقت اسیری اور وفاداری مدارس اسلامیہ کی تاریخ نمایاں کرتی نظر آئے گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری ان مدارس و مکاتب کی تاریخ کا روشن ہے، لیکن اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج ہمارے ان مدارس کی، آج ہمارے علماء کرام کی تمام تر قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ ہماری ان مدارس کی تعبیرات ماضی کو شکوک و شبہات کے دائرے میں رکھا جا رہا ہے۔ اس لیے اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج حضرت نانوتوی کی روح ہمیں آواز دے رہی ہے، حضرت گنگائی کا دل پکار رہا ہے، شیخ الہند کا جگر صدا دے رہا ہے کہ ایک عظیم نانوتوی کے روحانی فرزندوں جن اداروں کی فیض تربیت سے ہم نے ہندوستان میں معراج کا سورج روشن کیا تھا، آج انہی درسگاہوں کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ جن درسگاہوں کی فیض صحبت سے اس ملک میں باتیں بھاری آئی تھی، آج انہی درسگاہوں کو بنیاد پرستی اور ملک دشمنی کا تانا دیا جا رہا ہے۔ اس لیے آج میں ان علماء کرام کی موجودگی میں، پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے اس ملک ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا تھا، ہم فرقہ پرستی سے آزاد کرائیں گے۔ ہمارے اکابر نے اس ملک ہندوستان کو انگریزوں سے نجات دلائی تھی، ہم ملک دشمنان سے اس ملک کو پاک صاف کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہندوستان کے جیالوں، آج ہمیں مدارس اسلامیہ اور مراکز دینیہ تحفظ اور بقا کی خاطر پرخار وادیوں میں قدم رکھنا ہوگا، دار و رسم کو چومنا ہوگا، اس لیے کہ
यही अकाबिर का तरीका है, यही अकाबिर का दस्तूर है, यही शेख हिंद की तारीख है, यही मुजाहिदीन मिल्लत का किरदार है। क्योंकि ये सिर्फ हमारे समाज का मसला नहीं, ईमान की हिफाजत का मसला है, दीन की तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, शरीयत की पासदारी का मसला है, रिसालत और नबूवत की इज्जत और आबरू का मसला है। याद रखिए, अगर हम अपने आप को अपने घर में मामूल और महफूज समझते हैं तो ये हमारी नादानी और बेवकूफ़ी है। हमें ये यकीन रखना होगा, अगर ये मदारिस बाकी है, अगर ये मदारिस बाकी है तो मुसलमानों का तशख़्ख़ुस और इम्तियाज़ बाकी है। अगर ये इदारे ज़िंदा है तो इस्लाम का चिराग रोशन है। अगर ये दीनी मराकज़ महफूज है तो हमारी इज्जत और आबरू महफूज है। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मदारिस के वजूद से लाल किले की फसील कायम है, मदारिस के क़याम से कुतुब मीनार के रवात मुतल्लिक़ है, मदारिस की रोशनी से ताजमहल की चमक और उसकी चांदनी वाबस्ता है। और इन्हीं के दम से हिंदुस्तान आबाद है। बल्कि हकीकत तो ये है कि मदारिस की दम से है यहाँ की आबरू बाकी, मदारिस की ही दम से है यहाँ की आबरू बाकी, इन्हीं के फैज़ से है मुल्क में सब्ज़ शादाबी। मोहतरम हज़रात, अब आइए ज़रा दौरे हाथ ये जो 2 से 3 मिनट का सफ़र है मेरे साथ, मैं आपकी बहुत तवज्जो चाहता हूँ इसमें, बड़ी तवज्जो से सुनना कि देखो। अब आइए ज़रा दौरे हाजिर में इन दीनी मदारिस और मकातिब के किरदार का जायज़ा लेते हैं तो फ़ौरन ज़हन की गलियों में ये सवाल गर्दिश करना शुरू कर देता है कि इन दीनी मदारिस और मकातिब का किरदार क्या है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, सुन लो। इन दीनी मदारिस और मकातिब के ज़रिए न सिर्फ इस्लामी माशरा, इस्लामी अखलाक और फ़ज़ाइल जिंदा व ताबिंदा होते हैं, बल्कि इस्लामी उलूम व फ़नून की तरबियत जैसे मुबारक अमल इस्लामी कल्चर में जारी रहता है। और सुन लो, ये बात बिरोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि अगर आज ये दीनी मदारिस और मकातिब में होते तो आपके निकाह पढ़ाने वाला कोई न होता। तवज्जो करना, तवज्जो करना, अगर आज के दीनी मदारिस और मकातिब में होते तो आपके निकाह पढ़ाने वाला कोई न होता। अगर आज के दीनी मदारिस और मकातिब में होते तो आपके जनाजा पढ़ाने वाला कोई न होता। अगर आज के दीनी मदारिस और मकातिब में होते तो हुकूक के वालिदैन को बताने वाला कोई न होता। अगर आज के दीनी मदारिस और मकातिब में होते तो हुकूक के ज़ौजैन को बताने वाला कोई न होता। अगर आज ये दीनी मदारिस और मकातिब में होते तो रब की तौहीद को बताने वाला कोई न होता। तवज्जो करना, आज अगर मस्जिद में चटाई पर बैठ कर इशाअत दीन की बात करते हैं तो ये दीनी मदारिस और मकातिब का किरदार है। आज अगर दुनिया के कोने कोने पर तबलीगी जमात पहुंची हुई है तो ये दीनी मदारिस और मकातिब का किरदार है, ये दीनी मदारिस और मकातिब का किरदार है। आज अगर खानकाहों में अल्लाह अल्लाह का नाम गूंजता है तो ये दीनी मदारिस और मकातिब का किरदार है। आज अगर नामों से सहाबा के लिए कोई लड़ता है तो ये दीनी मदारिस और मकातिब का किरदार है। आज अगर कोई नामों से रिसालत के लिए लड़ता है तो ये दीनी मदारिस और मकातिब का किरदार है। हर दम बरस रहा है अनवार मदरसों में, आकर तो देखिए ना एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर की दावतें हैं, शक्कर इबादतें हैं, होता नहीं है कोई दिन एतवार मदरसों में। आज़ादियों के नारे, आज़ादियों के नारे हमने अदा किए थे, आज़ादियों के नारे हमने अदा किए थे, ए मातरे वतन के मेहमान मदरसों में। तवज्जो करना, तवज्जो करना। दौरे हासिल में देखो, अगर एक बाप के 2 बच्चे हैं, एक अक्लमंद और होशियार है और दूसरा बेवकूफ़ है, तो वो बाप क्या करता है कि अक्लमंद और होशियार बच्चे को स्कूल और कॉलेज की तालीम दिलवाता है सिर्फ इसलिए कि वो अक्लमंद है और होशियार है। और दूसरा जो कमज़ोर बच्चा है उसको क्या करता है, उसको मदरसे में दाखिल कर देता है सिर्फ इसलिए कि ये कमज़ोर है, ये किसी काम का नहीं। अब एक की तरबियत और परवरिश स्कूल और कॉलेज से होती है और दूसरे की परवरिश मदारिस से होती है। फिर नतीजा क्या निकलता है कि 2-3 साल के बाद वही मदरसे में पढ़ने वाला कमजोर बच्चा अपने अब्बा जान को खुशखबरी, मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन देता है कि बाबा जान मैं हाफिज़ कुरान बन गया, मैं हाफिज़ कुरान बन गया। अरे ये दीनी मदारिस और मकातिब का किरदार नहीं तो और क्या है। सुन लो, इन दीनी मदारिस और मकातिब का किरदार, जब ये बच्चा अपने वालिदैन की खिदमत को सरे अंजाम देता है तो ये दीनी मदारिस और मकातिब का किरदार है। जब ये बच्चा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमल उस्ताद बनता है तो ये दीनी मदारिस और मकातिब का किरदार है। जब ये बच्चा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमल उस्ताद बनता है तो ये दीनी मदारिस और मकातिब का किरदार है। इन दीनी मदारिस और मकातिब वाले ने इस कमजोर बच्चे को इस हद तक लाया कि वो हाफिज़ कुरान बन गया, वो मुबल्लिग़ इस्लाम बन गया, वो मुहद्दिस इस्लाम बन गया, वो मुफस्सिर इस्लाम बन गया। यानी कि दीनी मदारिस और मकातिब का किरदार नहीं तो और क्या है। नागपुर वालों मैं तुमसे कहता हूँ, अपने बच्चों और बच्चियों का मुस्तकबिल बनाओ, अपने
अपने बच्चों और बच्चियों को मदारिस और मकातिब से तालीम दिलाओ और गारंटी ले लो, आज तक इन मदारिस और मकातिब में पढ़ने वाला बच्चा भूखा नहीं मरा, तुम्हारे बच्चे भी भूखा नहीं मर सकते। दीन दुनिया के लिए नहीं पढ़ना, कुरान दुनिया के लिए नहीं पढ़ना, दुनिया को कदमों में फेंक देगा खुदा। माल देने का वादा अल्लाह ने किया है, दीन हासिल करने के मेहनत का हुक्म सरकार ने दिया है। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और मेरी पर्दानशीन माओ और बहनों, हमें ये चाहिए कि दीनी मदारिस और मकातिब के किरदार को समझे, मकाम को समझे और अपने बच्चों और बच्चियों में सबसे बेहतरीन, सबसे सही बच्चे को मदारिस और मकातिब से तालीम दिलाए, ताकि लोगों के सामने और भी वाज़ेह हो जाए मदारिस और मकातिब का किरदार। अल्लाह ताला के सुनने से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।